معیاری خوراک عوام کا آئینی حق ہے اور اس کی فراہمی ریاست کا بنیادی فریضہ ہے۔ بدقسمتی سے مملکت خداداد میں صورتحال اس کے برعکس ہے، جہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی محفوظ نہیں۔ عوام لا علمی میں نہ صرف اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بلکہ مہلک امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں متعدد فیکٹریاں حیوانی آلائشوں سے تیل کشید کر صابن سازی کے لیے تیل سپلائی کرتی ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق یہی آلائشی تیل کھلے پکوان تیل اور برانڈڈ تیل میں ملاوٹ کے لیے بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ نت نئے ناموں اور دل فریب پیکنگز میں مارکیٹ میں دستیاب تیل عوام کو سلو پوائزن کی صورت میں کھوکھلا کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت اور عوام کی لا علمی کے نتیجے میں موذی امراض سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب مارکیٹ میں موجود خوشنما اور دل فریب پیکنگ میں موجود بیکری اور سویٹس آئٹم کی اکثریت بھی مضر صحت اجزاء سے تیار کی جا رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں تو درست ہوگا۔ سویٹس اینڈ بیکرز شاپس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک بیکرز کا کارخانہ اور دوسرا حصہ فروخت کرنے والا، جبکہ مال تیار کرنے والا پورشن صارفین کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ مٹھائی کارخانے کے چولہے، کڑھاؤ، سانچوں، برتنوں اور مٹیریل وغیرہ کی حالت کیسی ہے اور کارخانے میں کام کرنے والے بیکری ورکرز کی کیا حالت ہے، یہ تو وہی جانے جس کا واسطہ پڑ جائے۔ لیکن سویٹ شاپس کا سیلز پوائنٹ پوری آب و تاب سے چمکایا جاتا ہے، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ آج کی گرفت ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں حیوانی آلائشوں سے تیل کشیدنے والی ایک ایسی فیکٹری جو بظاہر تو صابن ساز فیکٹریوں کو تیل فراہم کرنے کی دعوے دار تھی، لیکن اس کے حوالے سے یہ شکایات موصول ہوئیں کہ یہ پکوان تیل میں ملاوٹ کے لیے بھی مضر صحت تیل سپلائی کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب مضر صحت اشیاء بنانے والی سویٹس اینڈ بیکرز شاپس کو بھی گرفت میں لیا گیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ ٹیم گرفت پہنچی حیدرآباد سٹی۔ کارروائی کے لیے ٹیم انچارج ڈیپٹی ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی مہدی شاہ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی جہاں زیب موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے ایک مضافاتی علاقے میں۔ سر یہ ہم کہاں پہ آئے ہیں اور کس چیز کے اوپر ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم ممبرس کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا دور، دیکھیں کتنا یہ ہم ٹریول کر کے آئے، کتنا مطلب ٹریز تھے، کتنے آگے اندرون سندھ میں آ کے انہوں نے شہر سے یہ ریسرچ کیا۔ سیکنڈلی یہ پہلے دن کو کام کر رہا تھا، تو پھر ہمارے ایکشن کے بعد اس نے دن کو کام کرنا بند شروع کیا۔ ہماری جیسے اطلاع ملا کہ ابھی اس نے رات کو کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو ریکی کر کے اس کو پھر ہم نے پکڑ لیا کہ اب اس نے رات کو، اب یہاں پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنی سمیل ہے کہ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ حیدرآباد سٹی کے مضافات میں تقریباً 45 منٹ کی مسافت پر ٹیم گرفت پہنچی اس مضر صحت تیل بنانے والی فیکٹری میں، جس کے بارے میں سندھ فوڈ اتھارٹی کے عملے نے بڑی جاں فشانی سے پتہ لگایا تھا، جبکہ اس مضر صحت تیل بنانے والی فیکٹری کو انتظامیہ کی جانب سے پہلے بھی ایک مرتبہ سیل کیا جا چکا تھا۔ گاڑیوں سے اترتے ہی شدید بدبو اور تعفن نے ٹیم گرفت اور فوڈ اتھارٹی کا استقبال کیا۔ واقعی میں شہر سے کافی دور حیدرآباد سے تقریباً ہم پونے گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس جگہ پہ پہنچے ہیں، اور یہاں پہ کنڈیشن ایسی ہے کہ بالکل جو میری صاحب نے بتائی تھی باتیں وہ بالکل اسی طریقے سے کام چل رہا ہے۔ یہاں پہ بھٹیاں ان کی آن ہیں اور اس میں یہ مختلف جانوروں کی جو آلائشیں ہیں ان کو ڈال کے ان کو کرش کیا جاتا ہے، اور کرش کرنے کے بعد یہاں سے ان سے تیل جو ہے وہ کشید کیا جاتا ہے۔ یہ تمام بھٹیاں اس وقت چل رہی ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر کارروائی کی جا چکی ہے، لیکن اس کو سیل کرنے کے باوجود انہوں نے رات میں یہ کارروائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی۔ سر یہاں کی اطلاعات آپ پہلے تو زبردست آپ لوگوں کی ٹیم کا کام ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے خود دیکھا کہ ہم کہاں سے اور کس راستے سے آئے اور کہاں ہمیں اندر آنا پڑا ہے۔ میں اپنی ٹیم کو شاباشی دیتا ہوں اس بات پر، اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے آئیں تو کچھ ان کے جو مزدور لیبر ہے یہاں سے دیوار کود کے بھاگ گئے ہیں کافی۔ اندرونی ماحول کوڑا کرکٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ زنگ آلود مشینوں پر جمی گندگی، زیر استعمال برتن اور ڈرمز اور ان میں بھرا ہوا تیل غلاظت اور گندگی سے بھرپور تھا۔ فیکٹری کا بیشتر عملہ دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا تھا۔ ان کی یہ مفروری ان کی جعلسازی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فیکٹری کے کچھ کارندے اور ایک منشی ابھی فیکٹری میں موجود تھے۔ ایسی اسمیل ہے
کہ یہاں پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس پورشن میں ان کا یہ ہے, یہاں سے یہ را مٹیریل شفٹ کر کے یہ پھر آگے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح مرغیوں کی ویسٹ کا یہ را مٹیریل نکالتے ہیں. ہاں سر یہ جو پروسیس آپ نے دیکھا ہے باہر بوائلر لگا ہوا ہے, اس کے بعد یہ اس کی جو مشینز ہیں اس سے جو ہے وہ اس کو کمپریس کر کے یہاں پہ سارا ایکسٹریکٹ جو ہے یہاں پہ جمع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سیوز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ چھان کے جو ہے یہ ٹینکس وغیرہ فل کر کے سپلائی دیتے ہیں. اب بقول ان کے کہ یہ جو ہے ہم سوپ بنا رہے ہیں, لیکن ہمیں جو کچھ شکایتیں آئی ہیں کہ یہ جو ہے کوئی ایڈیبل آئل کے پرپز کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو جو ہے ہم نے پہلے ہی بند کیا ہوا تھا, لیکن یہ پھر اللیگل یہ انہوں نے کھول کے جو ہے دوبارہ کام شروع کر دیا. سندھ پولٹری فیڈ پروٹین فیکٹری کے عنوان سے قائم یہ فیکٹری بظاہر تو صابن سازی کے لیے تیل سازی کی دعوے دار تھی, لیکن اطلاعات کے مطابق اس فیکٹری میں 2 قسم کے شکوک پائے جا رہے تھے. ایک یہ کہ فیکٹری میں تیار کیا جانے والا تیل کھانے پینے کے لیے استعمال ہونے والے پکوان تیلوں میں ملاوٹ کے لیے بھی سپلائی کیا جاتا تھا. دوسرا احتمال یہ تھا کہ تیل کشیدنے کے لیے جن جانوروں کی آلائشیں استعمال کی جا رہی تھیں ان جانوروں میں شاید حلال و حرام کی تمیز بھی ملحوظ نہیں رکھی جا رہی تھی. ان کی پریسنگ, ان پارٹس کی پریسنگ کر کے پھر جو سائڈ سے آئل نکلتا ہے وہ آئل جو ہے یہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں اور فوڈ کنزمپشن کے حساب سے استعمال ہوتا ہے. اب اس چیز کا آئل اگر استعمال ہو تو انسان کو کیوں نہیں اثر ہوگا انسان کو. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہڈیاں اور دیکھنے میں یہ آیا ہے عام طور پہ کہ حرام جانوروں کی بھی ہڈیاں جو ہیں, کتے بلی کی بھی ہڈیاں ہیں اس کے اندر, ایون یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ گدھوں کی بھی ہڈیاں اور تمام علائشیں وغیرہ ان کی چربی, یہ ان ساری چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ایڈیبل آئل بنا کے اس کو کھلے آئل کے طور پہ مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے. لاسٹ ٹائم آئے تھے, ان کو نوٹس بھی دے کے گئے ہیں اور یہ سیل کر کے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کٹر سے لا کے انہوں نے یہ کٹنگ کر کے اپنی دوبارہ ڈی سیل خود کی ہے. یہ دیکھیں پورا گیٹ سے کاٹ کے انہوں نے جو ہے نا پورا گیٹ کاٹ کے انہوں نے, یہ دیکھیں گے گیٹ میں نئی ویلڈنگ شیلڈنگ انہوں نے کی, پورا گیٹ کاٹ کے دوسرا انہوں نے پیچھے لگا کے انہوں نے یہ ڈی سیل کی. سر انہوں نے جیسے ڈی سیل کیا ہے تو یہ ڈی سیل کرنے کے اوپر تو پھر کاگنائزیبل آفینس بن جاتا ہے, ان کے تو گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل, پروسیڈنگس اب ان کے خلاف جاری ہیں. یہ ہمارے آج وزٹ کیا ہے اور ویزیبلی ان کو ہم نے چیک بھی کیا کہ اندر کام بھی اسٹارٹ کر دیا ہے اور انہوں نے سیل بھی توڑ دی. لازمی فردر پروسیڈنگس ان کے خلاف جاری کریں گے. دیکھو ہم ہیں ملتان کے رہنے والے, ہمیں منشی جو ہم مالک تنخواہ دیتا ہے, جو ہمیں آرڈر ہوگا ہم تو اس کے تحت ہی چلیں گے نا. پھر آپ کا مالک کہاں پر اور کدھر رہتا ہے؟ آپ کے مالک اپنا یہ گدی ہے, گدی چوک سے آگے ان کا گھر ہے. آپ کے مالک کا نام کیا ہے اور اپنی کہاں کے رہائش کے ہیں؟ جو کالونی کا نام نہیں آتا ہے, شہر کے حیدرآباد کے. اور کب سے یہ کاروبار کر رہے ہیں یہاں پر؟ کر رہے ہیں 15 سال سے کوئی بھی نہیں آپ کے پاس آیا, نہ کسی نے کچھ بولا ہے؟ مجھے تو ہو رہا ہے 4 سال آئے ہوئے. میری موجودگی میں تو یہی بھائی ہے, وہ ڈاکٹر آئے, کیا اس کا نام یہی ہے. پہلے کوئی بھی نہیں آیا تھا 3 سالوں میں. یہ اس سال 4تھے سال میں یہی ہے, انہوں نے سیل کی. پہلے تو کوئی آج تک کوئی بندہ نہ کوئی آدمی آیا ہی نہیں, نہ کسی نے سیل کی ہے. رابطہ کیا, مالک کو بتایا کہ ہمارا مالک کو بتایا گیا, کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, تھوڑی یہاں سے فاصلے پہ رہتے ہیں, حیدرآباد میں ہی ان کی رہائش ہے. بہرحال یہ ساری لیبر جو ان کے تحت کام کر رہی ہے یہ خود ایک ہیزارڈیس کنڈیشنز کے اندر کام کر رہی ہے. آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے اس کی؟ بابا پہلے بھی 13 سال پیچھے ملتان میں کر کے آیا ہوں, اسی فیکٹری میں. بدبو ہمارے دماغوں میں رچی ہمیں کہ 13 سال پہلے میں چلا کے آیا ہوں, 13.5 سال شوجاباد روڈ پہ. کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کبھی ہیں یہ کس چیز؟ جو APC ہے مرغی خوراک میں استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو آئل ہے وہ صابن کے لیے اپنی ان کی فیکٹری ہے بہاری پمپ سے آگے, یہ آئل ادھر لے جاتی ہے. کون سے نام کیا ہے؟ رفیق گدی صاحب. صابن کی فیکٹری؟ صابن کی فیکٹری وہ دودھ کی ڈیری سے مشہور ہے. کیا نام ہے یار؟ یہ بہاری پمپ جاؤ گے نا, بہاری پمپ کے آگے گلی نکل رہی ہے, اوپر نام نہیں لکھا ہوگا. ایسے میں بولوں گے نام نہیں لکھا ہوگا, ادھر ہی وہ صابن بناتے ہیں. ڈیری کے نام کے ساتھ مشہور ہے اور بناتے ہیں وہاں پہ صابن ہے. ڈیری بھی ہے, سائڈ پہ ڈیری بھی ہے, ان کا دودھ کا بھی کاروبار ہے, صابن کا بھی کاروبار ہے, کافی بہت. یہ تو مرغی کی فیڈ بنا رہے, وہ ڈیری کا کام ڈیری کا کر. ہاں وہ ان کا دوسرے بھائی کرتے ہیں. اچھا, سارے بھائی مل کے یہ کام کرتے؟ یہ نہیں سارے نہیں, وہ ان کا الگ کام ہے. وہ اس سے خریدتے ہیں تیل, اس سیٹ سے. ان کا صابن کا الگ کام ہے, اس کا الگ کام.
ये प्रोटीन जो है एपीसी में मिक्स होती है। ये अगर मुर्गियों में फीड में A1 फीड होगी, HS फीड होगी, सोना फीड होगी, कोटरिया नूरीबाद होगी, ये सारी फीडें ले रही है एपीसी। इसके अंदर मुर्गी के अलावा और कौन कौन से जानवर की तलाश ली जाती है? हम इस चीज़ की सबूत देंगे। कुछ तो अगर हो जाए तो क्या मसला है जब साबुन ही बना रहे जो अगर हो जाए कोई और जानवर तो तुम्हारा जूता हमारा साथ। हैं? तो अगर हो जाए तो अगर साबुन ही बना रहे हैं हमने लेबर को बोला है, रात वाली लेबर को, कि एक मुर्गी भी मुर्दा आ जाए तो आपने उसको निकाल देना है। मुर्दा मुर्गी नहीं, जिंदा मुर्गी से बनाते हैं। मुर्दा नहीं, ये तो ज़िबा होता है ना, मुर्गी कचरा होता है जो आंद्रे पर खम्ब जो खुड्डे वाले दुकानों वाले हैं वो लेके उधर से लेके आते हैं। कुछ हड्डियां मुझे नजर आई थी जो मुर्गी की तो नहीं हो सकती, अब नजर आई। काम दिखाओ, दिखा देते हैं आपको, आइए जरा। ये मुर्गी की हड्डी है भाई, इधर आइए, ये मुर्गी की हड्डी है, ये दिखाएं। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ कि कोई वो कहीं खुड्डे वाला को लेके आ जाता होगा या कोई जानवर की को साथ कोई मुर्गी के हो। हमने तो बताया हुआ है लेबर को कि निकालना जरूरी है। हम इस चीज की गारंटी देंगे। तो लेबर ने निकाली तो नहीं ना? चूंकि ये वो जब एक गाड़ी 50 मन की आती है या 60 में, उसमें वो जैसे पंजी से उतार रहे थे, उनको नहीं नजर आई होगी, नहीं निकाली होगी। अच्छा, ये यहाँ तक तो आ गई है ना फिर, और क्रशिंग भी हो गई है। इसके हम माजरत कर लेते। चलें, बड़े आसानी से आपने माजरत कर ली। उस वक्त तो आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जा बजा चौपायों की हड्डियां और जबड़े बरामद हो चुके थे। मुंशी के फकत मुर्गी की आलाइश के दावे धरे के धरे रह गए, लेकिन मुंशी फिर भी अपनी बात पर डटा हुआ था कि इस फैक्ट्री में सिर्फ मुर्गी की आलाइशों से तेल कशीदा जाता है। ये मुर्गी की नहीं है, ये तो बकरे की है। बकरे की है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था मुर्गे की होगी। नहीं, मुर्गी की नहीं होगी तो मुर्गी की होगी। नहीं, बकरे की। नहीं, हाँ, सही बताएं। ये मैं कहता हूँ कि बकरे की है, तुम कहते हो नहीं। मैं बोल रहा हूँ मुर्गे की है, ये मुर्गी की नहीं। नहीं, मुर्गे की तो इतनी बड़ी नहीं होती है। चलें ठीक है। और वो किसकी थी फिर ये भी बता दें। किसी जानवर की थी। जानवर की हो गया। किसकी थी? गधे की थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े जबड़े के साथ गधे की। मेरे भाई गधे की ऐसी नहीं होती मेरे भाई। हम इतने अच्छा चलें बताएं। जिंदगी गुजार चुके हैं, 13.5 साल गुजार चुके हैं, बच्चे तो हम भी नहीं। अच्छा चलें। ये क्या है? वो जो होती है खम्भ जो होता है उसके ऊपर वो उतार के जो तोड़ देते हैं। ये अभी तो आप कह रहे थे अगर मुर्दा मुर्गी भी आ जाती है तो वो निकाल देते हैं। बात है सीधी सी। हमने आपके लेबर तो आपकी बात नहीं मानते ना। क्योंकि चली जाती होगी। नहीं, आपके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी अगर कोई आपका वर्कर करे तो उसके साथ आप क्या करते हैं? छुट्टी करा लेते। कितनों को छुट्टी कराई अभी आप? मैंने तकरीबन काफियों को छुट्टी करा चुका है इसी मामले में। और अगर आपके मालिक जो है ना वो ये देखें, सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, आपके मालिक अगर देखें और वो ये उनको आप बोल रहे हो कि नहीं हम सिर्फ मुर्गी का ही काम करते हैं, तो वो आपकी भी छुट्टी करा सकते हैं। इसका मतलब मेरी बात सुनो। ठीक है, वो मैं मानता हूँ भैया, वो मैं मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ। ये हलाल चीज़ है, कोई हराम चीज़ तो नहीं है। वजन इसमें जो काफ़ी कोर्ट्स वगैरह में भी शतवे इनका कोई केस वेस चल रहा है, वो अभी ज़्यादा तो भी इनका भी नहीं रखते, लेकिन ये है कि इन्होंने अपने ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र करवाई है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिस सोप फैक्ट्री को शायद बेचते हैं उनका नाम भी है सामने लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इनकी वेरिफिकेशन के लिए भी हम लोग फर्दर आगे अदर डिपार्टमेंट्स में भी भेज देंगे। किस तारीख के बने हुए? ये तो 2017 ही दिखा रहे हैं, यही बने हुए। लगता है मेरे ख्याल ये एक्सपायर हो गई, ये लिखा हुआ भी है इन्होंने 22 जुलाई 2017। 2017 का टैक्स इन्होंने जो जमा कराया है वो डॉक्यूमेंट है? जी, यही वही डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं ये भी जुलाई 2017 के ही दिखा रहे हैं। 17 के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। कोई नया बिल है आपके पास? नया बिल है। अच्छा, इस प्लाट का नंबर क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी हमें डॉक्यूमेंट होगा ना। नहीं, ये भी देखें है सो फैक्ट्री का। यहाँ पे तो सो फैक्ट्री नहीं है कोई भी, यहाँ तो सिर्फ आप ऑयल निकाल रहे हैं। ये FBR का आपने डॉक्यूमेंट है, ये दिखा रहा है कि इस यूनिट पर
ये इस यूनिट के कागज़ है ना, तो ये लिखा है कि सोप फैक्ट्री है, तो यहाँ पे सोप वगैरह तो कुछ भी नहीं है, और सारे सर्टिफिकेट भी आपने, वो तो वहाँ पर है ना, उधर होने चाहिए ना भाई, इस जगह के हमें इस जगह की डॉक्यूमेंट नहीं है ये तो सोप फैक्ट्री नहीं है। यहाँ आप दिखाने को ये रख रहे हैं कि ये सोप फैक्ट्री है और ये आयल आगे आप यूज़ कर रहे हैं। नहीं, एक आपने ना दो, जी जी, मैं एक मुलाजिम हूँ, आप जो मुझे चीज़ दोगे तो मैं तो वही दिखाऊंगा ना। हम सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आया ये सोप फैक्ट्री है? ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। अच्छा, प्रोटीन का आपका कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाएं ना, जिस तरह ये आपने सोप फैक्ट्री का दिखाया, दिखाएं। कुछ भी नहीं, मैंने चेक किया, सारा कुछ नहीं है। हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल दिखा रहे हैं 2020 का, ये भी कोई दूसरी इंडस्ट्रीज है, सोप इंडस्ट्रीज, और ये हाली रोड है, और ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये हाली रोड नहीं है। तो अभी जो जाहिर हुआ है इन कोई डॉक्यूमेंट्स को देखकर हमें लगे ऐसे ही रहा है कि ये ज़ाहिरन अपने आप को सोप फैक्ट्री कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं फॉर ईटेबल कंजम्पशन। फैक्ट्री दस्तावेजात से किसी भी तौर से यह बात साबित नहीं हो रही थी कि इस फैक्ट्री से किसी भी साबुन साज फैक्ट्री को तेल सप्लाई किया जाता था। फैक्ट्री की ज़बूहाली, दावों की हकीकत साबित न होने और कागजी कार्रवाई में खुर्द-बुर्द के बायस सिंध फूड अथॉरिटी के अमले ने फैक्ट्री को सील करने का हुक्म जारी कर दिया। इस वक्त तो इसको हम सील कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन अगर कि लाते हैं कि ये आयल हम फलां सोप फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं, तो फिर हम इसको देखेंगे कि क्या प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट करते हैं। इनके खिलाफ क्या चालान किए गए? जी नहीं, अभी तो आपकी ये होगी सील, क्योंकि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिया कि ये आप किसी सोप फैक्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं। देखें, इस पे क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि साबुन बनाने की चर्बी, मतलब वो जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ था कि साबुन बनाने का वो था, उसमें FBR का टैक्स का एक डॉक्यूमेंट था, लेकिन यहाँ पे कोई साबुन की मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। तो अगर ये चर्बी भी साबुन की चर्बी बना रहे हैं तो वो किसको सप्लाई कर रहे हैं, एक भी डॉक्यूमेंट इन्होंने हमें नहीं दिखाया। तो यही है कि इसके सारे वॉल जो है हम सील कर देते हैं, और इसके मेन गेट जो है कंडीशन है क्योंकि इन्होंने काफ़ी तोड़ दिए हैं गेट, 2-3 जो मेन गेट हैं उनको हम सील कर देते हैं, और इनके वॉल जो हैं वो भी सील कर देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इस फैक्ट्री को जो है सील किया जा रहा है, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, मैनेजर भी साथ में खड़े हैं, और इस वक्त जो मेन गेट था, बॉयलर्स वगैरह को सील कर दिया गया था पहले, अब इस मेन गेट को भी सील किया जा रहा है। सर, आगे क्या फर्दर प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि पहले भी आपने इसको सील किया था फैक्ट्री को, दोबारा से इन्होंने डीसील करके और अपना काम जारी रखा हुआ था, आज हमने एविडेंस भी देख लिया इस चीज़ का। बिल्कुल ये ज़ाहिर हो गया था और कि इन्होंने डीसील भी किया है और अपना फैक्ट्री में जो इनका ऑयल का काम है वो भी इन्होंने शुरू कर दिया था। इनकी अगर पोजीशन ये है कि ये जो ऑयल है हम साबुन के लिए सप्लाई करते हैं किसी भी फैक्ट्री को, तो देखें ये फिर पूरे पाकिस्तान में भी ऐसा होता होगा। लाजमी है इस किस्म की दूसरी फैक्ट्रीज कराची में या पंजाब में कहीं ना कहीं होंगी, वो भी सप्लाई करती होंगी। तो इनको भी चाहिए अगर किसी साबुन फैक्ट्री को ये सप्लाई करते हैं तो प्रॉपर उसकी हमें इनवॉइसेस दें कि हम उनको वहीं से भी इसको वेरीफाई कर लें कि इनकी जो ये ऑयल है वो वहाँ पे जाता है। प्लस में इनके यूनिट में एक तजाद पाया गया है कि इनको ये जाहिर कर रहे हैं कि ये है साबुन फैक्ट्री, जो APR का उसमें डॉक्यूमेंट था वो लिखा होता क्लियर कट साबुन फैक्ट्री। तो यहाँ पर तो कोई भी साबुन नहीं बन रहा, यहाँ पर सिर्फ चर्बी निकल रही है ऑयल के लिए। अगर ये सप्लाई कहीं पे कर रहे हैं तो उसको हमें देखना पड़ेगा, तो फर्दर प्रोसीडिंग्स उसके वेरिफिकेशन के बाद ही हो सकेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी को एक ऐसी बेकर्स एंड स्ट्रीट शॉप की इत्तला भी थी जहां बेदरेग हिफ्ज़ान सेहत के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां बिखेरी जा रही थी। स्वीट्स एंड बेकर शॉप हैदराबाद के रिहायशी इलाके में मौजूद थी। नाज़रीन, इस वक्त हम एक कन्फेक्शनरी शॉप पे आए हैं, मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स यहाँ पे बन रहे हैं। इधर भी देखेंगे जो इनका बाहर आउटलेट है उसकी आप कंडीशन देख लें, और अब हम अंदर जाएंगे, देखते हैं इनके पास किस माहौल में काम हो रहा है। जी,
वही सिलसिला है आपके जो फैक्ट्री के आउटलेट्स होते हैं, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, इसके जो बाहर एक शोरूम होता है वो बेहतरीन कंडीशन में होता है, और पीछे जैसे ही आप आते हैं तो आपका इनका जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें आते ही आपको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके नज़रों से ओझल की जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं, जो कि नामुनासिब हैं, और ये नामुनासिब तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है सर। तकरीबन जो है इनकी फ्राइंग रेशो जो है ज़्यादा लग रही है, कलर ही बता रहा है कि ये जो है अब इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा, लेकिन आपके सामने है सर, ये यूज़ कर रहे हैं, और कोई SOP का मेरे ख्याल में धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कोई फॉलोइंग तो है नहीं, वही हालत मतलब श्योरिटी के हिसाब से समझ से बाहर है सर। अच्छा, मसला ये है कि अब इनके लेबर्स को दिखाया जाता है तो लेबर्स के बारे में कहा जाता है कि जी मज़दूरों को जो है वो हथिया लिया जाता है, मज़दूरों के ऊपर जो है वो किया जाता है काम। आना इधर ज़रा दोस्त, ये है इनकी कंडीशन। अब अगर ये खाना पकाएंगे, इसी में चीज़ें बनाएंगे, तो ऐसी सूरत में क्या इनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, इनको इस चीज़ के लिए नहीं रोका जाना चाहिए? दुकान में दाखिल हुए तो शिकायतों की तस्दीक होने लगी। बेकरी के बाहर गेट पर रखी हुई खाने की तमाम चीजें खुली रखी गई थी। कारखाने की हालत जार भी काबिल अफसोस थी। गंदगी, गलाजत, ताफुन और जली हुई दीवारों ने इस्तकबाल किया। जायदुल इस्तेमाल काले तेल का कढ़ाव मुंह चढ़ा रहा था। ममनुआ केमिकल ड्रम्स और घी के खाली कनस्तरों में मिठाइयां स्टोर की गई थी। यकीनन ये सारा माहौल इंसानी सेहत के लिए मुज़िर था। मैं थोड़ा सा इसको टिश्यू करूं तो ये देखिए, अच्छा ये आउटर एरिया है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इनर एरिया जो है उसको भी ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली फूड बनना है। मैं टिश्यू का दूसरी तरफ का एरिया इस्तेमाल करता हूँ, ये पूरे के ऊपर, और ये आप देख लीजिए। इन्हीं कंडीशंस में अगर आप अपने घरों में खाना पकाते हैं तो ज़रूर इस बेकरी से खाने पीने की अशिया लेना चाहिए। आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपकी अपनी हेल्थ है, हाइजीन है, उसके हवाले से आप जो भी फैसला करें। लेकिन अगर आप घरों में इस तरीके की कुकिंग नहीं करते, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो फिर ये जो बेकरी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ लेना आपके अपने लिए ऐसा होगा जैसे आप आंखों देखी मक्खी खा रहे हो। अच्छा, क्रॉस कंटामिनेशन है, आप कंडीशन देख सकते हैं। ये मावा पड़ा है और ये मावे में बिल्कुल स्मेल आ रही है। अभी आप अब स्मेल भी देखें और गंदगी भी देखें। ये देखें, स्मेल के साथ साथ ये पूरी रस्टिंग हुई भी है। आपने देख लिया है इसके नीचे, ये देखें ना, इसके नीचे भी भाई इसको उठाएं, खुशबूदार ये चीज़ ये यूज़ करें मिठाइयों में, और लोग जो है ना बड़ी अच्छी पैकिंग में दे के समझ रहेंगे ये कोई अच्छी चीज़ है। जलेबी, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है कि लिक्विड है, लेकिन बड़ा सा गाढ़ा सा लिक्विड है, बिल्कुल डेंजरस हेल्थ के लिए। भाई आप ओनर हैं, ये कंडीशन देख रहे हैं आप, अच्छी कंडीशन है? नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं? कोई तो जवाब दें। थोड़ा सा जंग आप चाट सकते हैं ज़रा यहाँ से? नहीं, थोड़ा सा? नहीं सर। तो फिर आप फिर दूसरों को क्यों दे रहे हैं ऐसा? आपके घर में भी ऐसी डीप फ्रीजर मौजूद है जिसमें जंग लगा हो? नहीं, तो फिर ये दूसरों के लिए इस्तेमाल की चीज़ें ये फिर गलत है? जी बिल्कुल गलत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, इंशाल्लाह तब। तो ये जंग एक दिन में तो नहीं लगता ना? बस इंशाल्लाह इसको चेंज करेंगे। ये आप देखें चीजें भारी इकट्ठे करके रखी हैं, अगर स्टोरेज करना है तो कम से कम मावा इसमें सर्च के साथ तो रखें ना। ये पूरा फ्रिज की डीप फ्रीजर की आप सत्यानाश और बैक्टीरिया, जरासीम सारे खाने की ओपन चीज़ों में पड़ जाते हैं। लाजमी ये सेहत के आपको मुनाफा तो मिलता है ना, या ऐसे नुकसान है कारोबार में, तो लोगों की ज़िंदगियों के साथ आप कम से कम इस तरह से नहीं खेलें।
बेकरी मालिक ने लाचार हर सवाल के जवाब में निदामत का इजहार किया और आइंदा सब कुछ बेहतर करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले ने बेकरी के मालिक को कुछ अरसे की मोहलत देते हुए जल्द अज जल्द हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाने का इंतबाही नोटिस दिया और उसूल और ज़वाबित की आइंदा पाबंदी न करने की सूरत में दोबारा कार्रवाई का इंदिया भी दिया। अब्दुल्ला भाई, ये तमाम चीज़ें आप जो बना रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा कि आप एक अच्छे मॉल में काम करें और जब आप सारी चीज़ें सही कर लें तो फिर हमें दोबारा से बुलाएं, फूड वालों को दोबारा से बुलाएं और दिखाएं कि आपने सारा कुछ सही कर लिया है। ठीक है भाई जी, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आप अपनी गलती तस्लीम करते हुए सारी चीज़ें सही करने के लिए तैयार हैं? जी जी जी। कितने दिन में? आप एक हफ्ते का टाइम दें, एक हफ्ता 15 दिन का, बस 15 दिन। नाज़रीन, ये अपने तौर पे अब्दुल्ला साहब कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये इस जगह के मालिक हैं और इन तमाम चीज़ों को जो बेज़ाब्तगियाँ इन्होंने की हुई हैं, गलत चीज़ें की हुई हैं, इनको ये सही करेंगे और तकरीबन 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट से जो सिंध फूड अथॉरिटी है उससे भी ये इसी तरीके से टाइम मांगेंगे और जितना ये टाइम मांग रहे हैं उतना इनको दिया जाएगा ताकि ये सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट कर लें। इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह इनके पास दोबारा वापस आएंगे और फिर इनकी अच्छी कंडीशन भी दिखाएंगे। हमारा मकसद किसी के कारोबार को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। वैसे ही इस तमाम दौर के अंदर जहां पे महंगाई और तमाम चीज़ों का जो है वो ऐसी क्रंच सिचुएशन है कि जहां पे रोज़गार लोगों को होना चाहिए, रोज़गार किसी का बंद करना ना इदारे का ये मकसद है, सिंध फूड अथॉरिटी का मकसद है, ना हमारा ये मकसद है। लेकिन चीज़ों को इम्प्रूव होना चाहिए। जो सदियों से चलती चीज़ें आ रही हैं, जो सदियों से रविश चलती आ रही है कि गंदे तरीके से लोगों के लिए बनाया जाए और अच्छे तरीके से अपने लिए बनाया जाए, उस चीज़ को अब चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी अपनी पूरे मुल्क में ये जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ज़्यादातर हम खुद ये कंज्यूम कर रहे होते हैं, कोई बाहर एक्सपोर्ट नहीं की जा रही होती हैं चीज़ें कि हम किसी को जो है ये एक्सपोर्ट कर दें और बच्चे ख़ास तौर पे इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जब वो कमज़ोर इम्यूनिटी के साथ डेवलप होंगे तो फिर उसके बाद उनको कौन कौन सी बीमारियां नहीं लगेंगी। ये जो यूज़ करते हैं एसेंस इसको बोलते हैं। अब पहली बात तो ये एक्सपायर था, मैंने जैसे ही उठाया अब ये कंडीशन नहीं करी है, अब हाथ तो नहीं लगा सकते इसको। ये चीज़ें ये कोई फ्यूमिगेशन भी नहीं करा रहे। ये देखिए ऊपर इसकी हालत पड़ी है, ऊपर देखिए आप, ये कंडीशन है सारी। मुआशरे पर निगाह दौड़ाएं तो मिलावट करने वाले चारों तरफ बिखरे नजर आते हैं। बेहिसी इस हद तक बढ़ जाए कि खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही हो तो संजीदा जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हुकूमत वक्त अपना आईनी और इंतजामिया अपना कानूनी असर रखती भी है या नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिस्दाक यहाँ जंगल का कानून तो राइज नहीं। इस ज़िम्न में इंतजामी इदारों को मजीद मुतहर्रिक होने की जरूरत है ताकि कोरोना के बाद की दुनिया में आवाम अपनी सेहत बेहतर से बेहतर कर सके। अभी तक फूड अथॉरिटी ने टोटल लाइसेंस 4,384 तक इशू हो चुके हैं। रूरल एरियाज के अंदर एक तो अवेयरनेस की भी कमी होती है, दूसरे ये कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और फिर उसके बाद आपके वहाँ पे जो रीजनल ऑफिसेज हैं तो वो किस हद तक जो है पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि हमारी हैदराबाद डिवीज़न खुल गया है, उसके बाद लाड़काना अब लाड़का सखर हमने स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल लाइसेंस भी हमारे हैदराबाद से आना शुरू हो गए हैं। हमारे रिसोर्सेज है उस पर हम कर रहे हैं लाइसेंस जगह जिसमें फूड बिजनेस में जितने भी हैं वो दे रहे हैं, फैक्ट्रीज़ को दे रहे हैं, जो हमारी टीम है वो पहुँच रही है वो लाइसेंस जितने दे रहे हैं। बहरहाल चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस एक तो नहीं है लोगों को, दूसरे ये कि रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे आप कमर्शियल काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी हैज़र्ड्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाते हैं कि आपको उस कैपेसिटी में काम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप अपने प्रॉफिट्स को देख रहे होते हैं और लोगों की जानों की परवाह नहीं होती आपको, तो ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम, बेहतरी की उम्मीद के साथ कि जैसे इन्होंने कमिटमेंट की है कि ये बेहतर कर लेंगे और चीज़ें फिर हमको बताएंगे, तो उसी लिहाज से हम यहाँ पे दोबारा विजिट करेंगे और देखेंगे कि अगर इन्होंने बेहतर कर लिया है तो इनकी तारीफ भी उसी लिहाज से की जाएगी जिस तरीके से इनकी खामियां और गलतियां खराबियां बताई गई थी। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।